channel. My name is Kangana. I'm a 23-year-old girl preparing for cat and nomads and also sharing bits and parts of my life on this channel here. So basically, I'm a cat repeater. Just a little bit of info about me if you're watching this for the first time. And I gave cat last year as well, and I scored 98.39 in BARC, a mere 30 percentile in cons, and a 61 percentile in LRDI, and overall 89.32 percentile. Now, a few of my subscribers wanted me to basically take them through the process of solving an RC, and I told them that I analyze RCs every day. So they wanted me to tell them how exactly I analyze it thoroughly every day. So this is what the video will be about. I will basically take you through the whole process of solving an RC, analyzing, marking, what went right, what went wrong. So please stay tuned and watch further. Thank you so much. Now this is me starting to solve the RC. Obviously the timer that you saw was the screen recording timer. The first thing that I did was go through some keywords which I can see in the passage, and then go through the questions and see if there are any keywords that I can basically note down. And obviously I found a few keywords that I noted down in the notebook, which today was my mother's phone, because obviously I also wanted to show you what keywords that I thought would help me, and not just the keywords. Now you can see I'm waiting here. So basically while reading, I saw in the para there are the keywords that are matching. I used to write, okay, this is something that I'll find in para 1 and 2, and this is something that I'll find in para 3 and 4. So not in every question you're going to find that, but in any question, if you find something like that, just mention quickly, so that while you go back, you can easily basically look for the places that you need to find that answer, right? So that's exactly what I did. Now we came to basically reading, and then after reading, marking the answer. You can see in the second question, I'm literally confused between illegal and reverence, and then I ended up marking reverence, which was wrong, and then I marked third and fourth, and obviously I was done with the RC. And yeah, let's start. Now coming to the main part of the video, the analysis, guys. Okay, hello guys, now welcome again. Now you have seen how I approached the RC. मैंने कैसे solve किया, पहले questions के keywords note किए, और फिर while reading the passage मुझे जहाँ लगा कि okay ये इस पैरा से आ रहा है, मैंने वो note down किया. फिर obviously after completing my reading and skimming, I went back to the questions और फिर मैंने ढूंढ के आंसर्स मार्क किए. ठीक है, you've seen मुझे कितने मार्क्स आए हैं. 4 में से मेरा 1 गलत है और 3 सही है. ठीक है, और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको ये भी दिख गया होगा कि किस क्वेश्चन का कितना एक्यूरेसी लेवल था. ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द टाइमिंग बिट. ऑफ कोर्स मैंने ज्यादा लिया क्योंकि एक कैमरा लगा हुआ था. आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड करें, यूजुअली मैं कॉपी पेन में नोट डाउन करती हूँ, तो बार बार वो करने में तो इट टुक अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर 8 मिनट्स बैठ के करती तो 8 to 9 मिनट्स में ये पैसेज मुझसे हो जाता विद द सेम एक्यूरेसी जो मैंने अभी दिखाई है. नाउ लेट्स एग्जामिन दी क्वेश्चंस. और आपको यूजुअली मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया है उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाई करेक्ट आंसर थिंग्स कि ये गलत है. बट मैं एज अ पर्सन आपको बताना चाहती हूँ, इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैंने क्यों किसी आंसर को एलिमिनेट किया एंड हाउ आई एंडेड अप मेकिंग इट राइट और रॉन्ग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगी. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, मैंने सही मार्क किया है. मैं बताती हूँ कैसे, सिंपल टर्म्स में बताती हूँ. मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, मुझे पता था कौन से पैसेज में मुझे स्पीच की बात करी गई है. मैंने वो 2 पैसेजेस देखे. मैंने देखा कि लास्ट वाला जो पैसेज है ना, उसमें द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि why he thinks the child was wrong or in which way. तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा जो डी ऑप्शन है, इट इज मेंशन्ड देयर. ठीक है, बट कंफर्मेशन के लिए आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ABC को. जब आप देखोगे कि जहां भी इस चीज की बात करी है, जहां ऑथर थिंक्स की इट वाज डन इन रॉन्ग वे या फिर वो रॉन्ग था, तो वहां पे ABC कुछ भी मेंशन्ड नहीं है. इट इज D दैट इज मेंशन्ड. तो आपने पहले तो रीड करके कंफर्म किया, दूसरा आपने सेकंड कंफर्मेशन ली थ्रू एलिमिनेशन. ये सेम मेरा अप्रोच था. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. इसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पाइटी. ये बेसिकली प्रोनाउंसिएशन भी मुझे नहीं पता थी, मैंने अभी सर्च करा कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, और इसका मीनिंग है लैक ऑफ रेवरेंस. ठीक है, और मैंने मार्क किया था रेवरेंस, व्हिच इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, लैक ऑफ रेवरेंस. रेवरेंस का मतलब हमने अभी जस्ट सर्च किया लाइक प्रॉपर्ली देखने के लिए. तो रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग. सो कमिंग बैक टू द ऑप्शन, तो जब मैंने एक वर्ड देखा जो मुझे नहीं पता था, तो आई वाज लाइक द ओनली ऑप्शन टू गेट द आंसर इज टू रीड कौन से सेंटेंस में वो वर्ड आया है, उसके पहले क्या सेंटेंस है, उसके बाद में क्या सेंटेंस है. बट इवन आफ्टर डूइंग इट फॉर 2-3 टाइम्स मुझे नहीं समझ आया. सो आई जस्ट एंडेड अप मार्किंग रेवरेंस. ठीक है, मुझे कोड ऑफ रिबेलियन और लैक ऑफ रिस्पेक्ट सेंटेंस के साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा था, तो आई वाज कंफ्यूज बिटवीन A and D. ठीक है, मुझे लगा इलीगल टू मच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द question that is mentioned, तो I went with reverence, but I was totally wrong. ठीक है, reverence पूरा opposite है उसका, और the answer is C, lack of respect. ठीक है,
सो दैट इज हाउ आई अप्रोच्ड इट, और मेरा अप्रोच कैसे गलत हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इन क्वेश्चंस में यूजुअली हमें ट्राई करना होता है कि हम वर्ड्स को पढ़े, सेंटेंसेस को पढ़े जिसमें वो वर्ड आ रहा है, ट्राई करें बेस्ट एलिमिनेट करने की। मैंने ट्राई तो करा बेस्ट एलिमिनेट करने के लिए, बट इट डिड नॉट रियली वर्क आउट एंड आई एंडेड अप डूइंग रॉन्ग, व्हिच हैपेंस, व्हिच इज फाइन। Now coming to the third option, मैंने मार्क किया है B, which is the right option, और ये मैंने प्योरली एलिमिनेशन मेथड से किया है। मैंने देखा कि what is the topic जिसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बात करी हुई है। तो A, C and D was talked about. Obviously same sentences नहीं mentioned थे, but similar things and topics have been talked about. For example, during the course of the trial, the political vendetta was aided by lack of knowledge of people. तो when you will study वो people और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहा है। But ये जो lack of appreciation है for thinker like Socrates, तो थिंकर और अप्रिसिएशन ये सब एग्जैक्टली इतना मेंशन था नहीं इन द लास्ट पैराग्राफ जहां पे हम बात कर रहे हैं आई.एफ. स्टोन्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उस पैराग्राफ के स्पेसिफिकेशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं था। सो विद एलिमिनेशन आई एंडेड अप मार्किंग द आंसर व्हिच एंडेड अप बीइंग करेक्ट, ठीक है। एंड कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, देखो यार मैं इसमें काफी कंफ्यूज हो गई थी, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि वो बी और डी तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, बिकॉज़ इट इज लाइक बी इज लाइक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इशू ऑफ फ्री स्पीच। यार फ्री स्पीच काफी नैरो हो गया है, लाइक आई डोंट थिंक सो द होल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो भी ऑथर को लगता है विल डिपेंड ऑन दैट थिंग, तो वो मैंने एलिमिनेट कर दिया। कमिंग टू डी, दैट वाज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ, अगेन टू लाइक स्पेसिफिक और एकदम डायरेक्ट इतना तो कुछ था भी नहीं। देयर विल बी सम लेयर्स व्हेन ही इज टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन option number A, which is both complex and layered, and option number C, plagued by the issue of intellectual freedom against civic duty. मैं पढ़ रही थी words like civic, words like intellectual, ये सब आ रहे थे, पर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ऐसे कॉन्टैक्ट में कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है। अलग अलग उसमें मेंशन था और भी चीजें मेंशन थी। तो जब मुझे मैंने देखा कि बहुत सारी और चीजें मेंशन है, तो आई रियलाइज कि ओके इट कैन बी ऑप्शन ए विच मीन्स कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड, क्योंकि इसका मतलब है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके। सो आई एंडेड अप मार्किंग ए। ये मैं पक्का मतलब लीप ऑफ फेथ के साथ कर रही थी। जब आप दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज होते हो और आपको लगता है कि एक होगा, तो यू जस्ट मार्क इट विद लीप ऑफ फेथ, ठीक है। सो दैट वाज मी एंड यस दैट इज व्हाट आई मार्क्ड एंड आई वाज राइट। सो दैट इज हाउ आई एनालाइज एन आरसी, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने जो आपको वर्बल फॉर्म में बताया ये सब मैं नोट डाउन करती हूँ, बिकॉज व्हेन आई नोट इट डाउन आई रियलाइज क्योंकि दिस इज अ मिस्टेक दैट आई डिड। पैसेज फॉर्मेट में मुझे लर्न तो नहीं करना है, पर पैसेज फॉर्मेट में क्या गलती हुई है, देयर आर टू थिंग्स मेंशन, हाउ डिड आई एंडेड अप बेसिकली इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। पैसेज के रेफरेंस में नहीं, फिर मुझे जनरल रेफरेंस में समझ आता है कि ठीक है अगली बार कोई XYZ पैसेज आएगा उसमें ऐसे दो टाइप के सिचुएशंस होंगे, तो हाउ कैन आई बेसिकली मार्क इट करेक्टली। एंड जो भी मैंने वर्बल फॉर्म में बताया दैट इज एक्जैक्टली हाउ आई डीपली एनालाइज एवरी RC दैट आई डू, एंड इट एंड्स अप बीइंग एन एनालिसिस ऑफ 2 pages. Now before moving ahead, I would like to talk about the sponsors of this video, Oswald Books. They have sent me their CAT 25 years chapter wise and topic wise solved papers. So if you've seen any other video of mine, I've told you कि मुझे जहाँ तक पता चला है थ्रू गुड एजुकेटर्स आउट देयर कि नए क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि नए क्वेश्चन हमें सिर्फ मॉक्स या फिर सेक्शन से मिलेंगे, बट अगर कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने नहीं आज तक सॉल्व किए हैं तो दे ऑल्सो एक्ट एज न्यू क्वेश्चन फॉर यू। वो नए क्वेश्चन भी और कैट के लेवल के भी हैं, तो आपको बेसिकली आपका होराइजन ब्रॉडन करने में माइंड का काफी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको बेसिकली ये चीज करनी है इन द कमिंग डेज एंड यू वांट टू रिसोर्स जिसमें सब कुछ टुगेदर एक तरफ पे दिया हुआ हो, कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया विद द सॉल्यूशन of it, I will link it in the description. You can check it out. Also, I'll attach a video just I'll showcase what other features this book has, so that if you are interested, you can purchase. Now, coming to the book that I was telling you about, it is 100% updated with 2023 3 shifts papers fully solved. Concept clarity, you can learn key concepts through smart revision notes and smart shortcuts. Extensive practice for you with 2200 plus chapter-wise practice questions and 3 sample question papers. You can have crisp recap with smart mind maps and mnemonics. You can get valuable exam insights as well with tips, tricks and shortcuts to ace CAT. So be 100% exam ready with previous year's subjective trend analysis. ओके सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। आई रियली ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्जैक्टली एक आंसर जो मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा अप्रोच क्या होता है, मैं क्या चीज़ें नोट डाउन करती हूँ, फिर मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ। सो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि इन दिस सेटिंग आई यूजुअली सॉल्व माय आरसीज। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो लैपटॉप पे थी आपको दिख गया कि मैं क्या पहले क्वेश्चन पे जाती हूँ, देन आई गो टू द आरसी, देन आई क्विकली स्किम थ्रू इट, ठीक है। फिर जो चीज़ें मैंने एक्चुअली फोन की रिकॉर्डिंग आपको दिखाई ना नोट डाउन करती हुए, यूजुअली मैं पेन कॉपी पे करती हूँ, बट मैं वो आपको फिर थर्ड कैमरा चाहिए होता जो कि अवेलेबल नहीं था, सो मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिया माय मदर्स फोन। एंड या जो भी मैंने आपको वर्बली समझाया दैट इज द मेन एनालिसिस पार्ट जो मैं कॉपी में करती हूँ। तो कॉपी में मैं लिखती हूँ तो मुझे वो चीज़ स्ट्राइक करती है कि इसलिए नहीं कि इस पैरा में ये हुआ, नहीं इस ऐसे सिचुएशन में ऐसा हुआ, मेरा ये अप्रोच था तो ये वर्क किया, ये डिड नॉट वर्क फॉर मी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई और पैरा आए, बिकॉज पैराज आर गोना बी लाइक चेंजिंग बट सिचुएशंस थोड़े थोड़े सिमिलर आ जाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि ओके दिस शुडंट बी डन और दिस शुड बी डन इन द नेक्स्ट
scenario when you basically have to tackle this type of situation. So that was the whole point of making this video. Again, see, it can work for you, it cannot work for you. So if you try it out for yourself and see if it is working for you, that's so great. But if it isn't, कोई ऐसा technical proven method नहीं है, so that is also good क्योंकि आपको पता लग गया कि this is not working, so you try something different that might work for you or that will work for you. So thank you so much for watching. Please like, share, subscribe because it motivates, and keep studying because exams are literally 45 days ahead. And yeah, that is all we can do. Use those 45 days in the best manner. Thank you. Bye. Take care.